معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالی آتما ایپیسوڈ نمبر 5۔ اف میرے خدا ناقابل فہم ہے یہ ساری باتیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ دوسرے لوگوں نے بھی گوشت کے ان ٹکڑوں کو دیکھا، کوئی بڑی ہی سنگین واردات ہوئی تھی اور واردات کرنے والے نہ جانے کون لوگ تھے۔ گوشت کے یہ ٹکڑے یہاں کیوں محفوظ کیے گئے تھے، کوئی ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال انسپیکٹر نے یہ تہہ خانہ اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ دریافت کر لیا تھا۔ اب ان اساتذہ وغیرہ کو بھی اس کے بارے میں اطلاع دینا ضروری تھا تاکہ آگے کی کارروائی کی جا سکے۔ نیچے تہہ خانے میں فوٹوگرافر وغیرہ کام کر رہے تھے۔ حالانکہ انسپیکٹر تہہ خانے میں اترا تھا، لیکن اسے باہر سے آتے دیکھ کر کمرے میں موجود استاد اور میڈم وغیرہ بھونچ کے رہ گئے تھے۔ میڈم نے کہا، انسپیکٹر آپ تو اس تہہ خانے میں؟ جی، ہم نے اس تہہ خانے سے باہر نکلنے کا راستہ دریافت کر لیا ہے۔ کچھ پتہ چلا؟ جی، انتہائی سنگین واردات ہوئی ہے۔ آپ کے ان دونوں سٹوڈنٹس کے ڈھانچے نیچے موجود ہیں اور ان کے جسموں سے سارا گوشت اتار لیا گیا ہے اور وہ گوشت ایک الگ الماری میں محفوظ ہے۔ میڈم کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے بعد وہ غش کھا گئی تھی۔ اسے سنبھالا گیا تو انسپیکٹر نے اپنے ایک ASI کو حکم دیا، تم انہیں لے کر تھانے چلے جاؤ، پوری رپورٹ تیار کرنی ہوگی۔ ابھی ان لوگوں کو تھانے میں ہی رکنا ہے۔ آئیے جناب، ان خاتون کو بھی سنبھال کر لے آئیے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جیپ میڈم وغیرہ کو لے کر وہاں سے چل پڑی۔ تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے۔ ASI اس طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے، لیکن جواب کیا دیا جا سکتا تھا؟ بہرحال یہ ساری چیزیں بے حد ہولناک تھیں۔ ادھر انسپیکٹر اس خوفناک واردات کے سلسلے میں بالکل ہی گنگ تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ 10 دن پہلے اگر اس چوکیدار کو قتل نہ کر دیا جاتا اور اس کی لاش اس کی شکل میں نہ پائی جاتی تو انسپیکٹر سوچتا کہ ممکن ہے کالج ہی کے لوگوں نے شرارت کی ہو۔ اور پھر گوشت کے وہ پارچے اور ایک خاص بات جو تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ دونوں کے جسموں سے اتارا ہوا گوشت پورا نہیں تھا، بلکہ اس میں سے آدھے سے زیادہ گوشت غائب تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے آدھے سے زیادہ گوشت کو استعمال کر لیا گیا ہو اور باقی محفوظ کر دیا گیا۔ پر اسرار آدم خور قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ 11 افراد اب اس نئی زمین کے ماحول سے واقف ہوتے جا رہے تھے، اور جوں انہیں یہاں سے واقفیت حاصل ہوتی جا رہی تھی، ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اوگلوس کے بیٹے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے، مقدس باپ، یہاں تو یہ لگتا ہے جیسے لوگ انسانی گوشت کھاتے ہی نہ ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا وسیع ہے اور ہم یہاں خوب عیش کر سکتے ہیں۔ ہاں میرے بچوں، اب جب سارگانہ ہمارے لیے خواب و خیال بن گیا ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں کے ماحول کو اچھی طرح سمجھ لیں، ان لوگوں کے رہن سہن سے واقف ہو جائیں اور ان کے درمیان انہی جیسے بن کر رہیں۔ میں اپنے علم سے مسلسل کام لے رہا ہوں اور ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ نئی زمین کے رہنے والے گھر بنا کر رہتے ہیں، جیسا کہ تم نے دور سے یہاں موجود اونچی اونچی عمارتوں کو دیکھا۔ ان عمارتوں میں وہ عیش و آرام سے رہتے ہیں، ان کے درمیان بھی آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، جھگڑے چلتے ہیں۔ یہاں وہ اپنی پرآسائش زندگی کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ ان کے درمیان دولت کا کھیل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دولت ذرا مختلف شکل کی ہے۔ رفتہ رفتہ میں تمہیں ان ساری چیزوں سے روشناس کرا دوں گا، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھنا، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے تمہیں کافی مدد کرنا ہوگی۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کے درمیان کیسے گزارا کر سکتے ہیں۔ میرے بچوں، میں مسلسل اس بارے میں سوچتا رہا ہوں اور میں نے اپنے جادو سے بہت سے فیصلے کیے ہیں۔ ہم بے شک اپنے جسم اسی طرح قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایک نسل اپنانی ہوگی، یعنی ہماری دوہری شکل اور بدلی ہوئی شخصیت۔ میں نہیں سمجھی مقدس باپ،
पारना ने कहा, जो बहुत समझदार लड़की थी। उसका बाप ओगलोस मुस्कुराने लगा, फिर बोला, तुम मेरे बच्चे हो, एक अजीम जादूगर के बच्चे जो आम लोगों से कहीं ज़्यादा ज़हीन होते हैं। सारगाना में अगर सरदारी की ज़रूरत होती तो हम यकीनी तौर पर सारगाना के लोगों से बरतर होते। हालांकि सारगाना के एक ख़ानदान ने, जिसकी वजह से सारगाना में तबाही नाज़िल हुई, दूसरे दुश्मन कबीले के एक ऐसे फ़र्द को अपने वजूद में उतार लिया था जो कबीले का सबसे ज़्यादा दलेर और बहादुर इंसान था, और वहीं से सारगाना में नहूसत का आगाज़ हुआ। चूँकि वो देवताओं के मंजूर नज़र होते हैं, अगर उन्हें नुकसान पहुंच जाए तो फिर तबाहियों और बर्बादियों के सिवा और कुछ नहीं होता। बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं, आसमान से बारिश होती है, हवाओं के झक्कड़ चलते हैं और दरख्त फिजाओं में उड़कर झोंपड़ों को अपनी लपेट में लेते हुए दूर निकल जाते हैं, और इंसान उनके दरमियान इस तरह पिस जाते हैं जैसे पत्थरों की चक्की में अनाज। तो मेरे बच्चों, सारगाना का आगाज़ यहाँ से हुआ था, और सारगाना में तबाही की बुनियाद उसी नौजवान की मौत थी जिसे हमारे कबीले के एक ख़ानदान ने चट कर लिया था। लेकिन ये काम हमारा नहीं था, हम सारगाना के सरदार को उसकी निशानदही करके सज़ा दिलवाते। खैर, मैं भटक कर दूर निकल गया। मेरा मतलब तो सिर्फ ये था कि अब सारगाना हमारे लिए ख्वाबो ख्याल बन गया है, और हम उस कबीले के फ़र्द होने के बावजूद अपने आप को किसी गैर मुहज़्ज़ब कबीले का फ़र्द नहीं ज़ाहिर कर सकते, बल्कि उन लोगों के दरमियान हमें इन्हीं लोगों की मानद रहना होगा। समझ रहे हो ना तुम? और मेरा जादू, मेरा इल्म मुझे ये बताता है कि आसाइशें और आसानियाँ हासिल करने के लिए हमें सांपों की शक्ल इख्तियार करना पड़ेगी। सांपों की? हाँ, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों में सांप ही सबसे ज़्यादा ज़हीन और ज़ी होश नस्ल होती है। मैं तुम सबको सांप बना दूंगा। मेरा इल्म, मेरा जादू बस इसी हद तक महदूद है। लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि कब और किस वक़्त तुम अपनी असली शक्ल में आओगे और तुम्हें किस तरह अपना गुजारा करना होगा। ये बात तो तुम जानते हो कि सांपों की भी बाकायदा कबीले होती हैं, उनकी नस्लें होती हैं, और ये नस्लें सदियों तक कायम रहती हैं। लंबी उम्र पाने वाली मखलूक में सांप सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैसियत रखता है, और तुम लोग उसी तरह महफूज रह सकोगे कि ज़मीन सांपों को अपने दरमियान जगह देती है, और तुम ज़मीन के अंदर ही अंदर रेंगते हुए कहीं से कहीं निकल सकते हो। मैं तुम्हें अपना इल्म का एक ऐसा लफ्ज़ बता दूंगा कि जब तुम सांपों से इंसानी शक्ल में आना चाहोगे, आ सकते हो, और हम सही मायनों में नाग कबीला ही कहलवाना पसंद करेंगे। हमारी आदमखोरी भी जारी रहेगी क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है, लेकिन उसके साथ साथ नई दुनिया में नए इंसानों की हैसियत से हम ये देखेंगे कि नए इंसान क्या खाते पीते हैं, किस तरह रहते हैं। और तुम्हें यह भी करना होगा कि नाग बनकर ज़मीन के नीचे नीचे जहाँ चाहो निकल जाओ और अपने लिए जगह तलाश करो। बात ये नहीं है कि हम अपने कबीले को मुंतशिर कर रहे हैं, बल्कि बात यह है कि यह सब कुछ बड़ा ज़रूरी है। ओगलोस की औलादें उसकी बातें सुन रही थी, और उनके जहनों में अपने मुकद्दस और जादूगर बाप के लिए बड़ी एहतराम की कैफियत मौजूद थी। वो जानते थे कि उनके बाप ने हमेशा उन्हें सही रास्ते दिखाए हैं और बड़ी उम्दगी से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, और आइंदा भी इस बात की उम्मीद थी, वरना कबीले के अंदर रहकर तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। हालांकि अगर मुकद्दस बाप चाहता तो वहीं अपनी पहाड़ियों में अपने लिए रास्ते बना सकता था, लेकिन नई दुनिया का सफ़र करके उसने अपने बच्चों को एक नई ज़िंदगी से रोशनास किया था, और ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। फिर वो वाक़या पेश आया और जिसमें कॉलेज के 2 अफराद यहाँ आ गए थे। ये तय खाना भी ओगलोस की दरियाफ़त थी, और ऊपर की फ़ज़ा से नीचे की फ़ज़ा उसे ज़्यादा बेहतर महसूस हुई थी। यही वजह थी कि जब वो दोनों अफराद यहाँ आए थे तो ओगलोस अपने पूरे ख़ानदान के साथ उसी तय खाने में मौजूद था, और यहीं उन्होंने उन दोनों को हड़प किया था। फिर जब कुछ ऐसे अफराद आए कि जिनके बारे में ये अंदाज़ा हो गया कि वो उनकी तलाश में आए हैं, तो ओगलोस ने अपने अमल का आगाज़ किया और अपने सारे बच्चों और बीवी को सांपों की शक्ल में तब्दील करके वहीं सुराखों में महफूज कर दिया, और उसके बाद वो वहाँ से तमाम कार्रवाई देखते रहे। जब ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और उन्हें इस बात का इत्मीनान हो गया कि आने वाले अब चले गए हैं, तो उन्होंने असली शक्ल इख्तियार कर ली
ओगलूस ने अपने सारे बच्चों को जमा किया और बोला, तुमने देखा कि यहाँ इंसानों को खा जाना एक जुर्म की हैसियत रखता है। अगर वो लोग हमें पा लेते तो यकीनी तौर पर हमें बदतरीन सज़ाएं दी जाती। ये सज़ाएं मौत की सज़ाएं भी हो सकती थी। चुनाचा बेहतर यही रहा कि हम लोग सांप बनकर छुप गए। अब तुम ये जान चुके होगे कि हम लोग नाग कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर कभी तुम्हारा वास्ता नागों से पड़ जाए तो तुम अपने आप को नाग कबीले का अफराद कह सकते हो। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है ना? हाँ मुकद्दस बाप, बस तो आज से ये समझ लो कि हमें ज़मीन के अंदर बिलों में रहना होगा। ये अलग बात है कि हम जब भी कभी मंज़िल आम पर आना चाहेंगे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके मंज़िल आम पर आ सकते हैं, और वो लफ्ज़ मैं तुम्हें ज़हन नशीन कराए देता हूँ। ये कहकर ओगलूस ने अपने जादू का वो लफ्ज़ उन लोगों को बताया और वो उसके तजर्बे करने लगे। उन सब को बहुत लुत्फ़ आया। तब ओगलूस ने कहा, मुकद्दस बाप, तब ओगास ने कहा, मुकद्दस बाप, अगर हम शाम के सिए से कहीं निकल जाएं और अपने लिए एक खूबसूरत मकाम तलाश करें तो क्या ये मुनासिब होगा? मैं तो खुद तुमसे ये बात कहता हूँ कि अब तुम्हें मुंतशिर हो जाना चाहिए, और जब भी कभी अब हम लोग आपस में मिलें तो तुम्हारे पास उसका ज़रिया मौजूद है, यानी तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ और किस जगह पहुँचना है। हम एक नाग मंडल बनाए देते हैं। उस नाग मंडल में आकर साल के कुछ दिन जब चांद डूब रहा हो हम सब मुलाकात किया करेंगे और अपनी अपनी कार्रवाइयों से एक दूसरे को आगाह करेंगे। आह, ये कितना अच्छा है, कितना दिलचस्प। सही मायनों में ज़िंदगी का आगाज़ तो अब ही हुआ है। लारवा ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। लड़कियां भी आपस में सरगोशियां कर रही थीं। हवेली से 3 अफराद की लाशें मिली थी। इंतहाई पुर इसरार हालात में ये लाशें दस्तयाब हुई थीं। वो बच्चे ख़ास तौर से जिनका इंतकाल उसी हवेली में हुआ था, अच्छी हैसियतों के मालिक माँ बाप के बच्चे थे। चुनाचा पुलिस की पूरी तवज्जो उस केस की तफ्तीश पर लगी हुई थी, और फिर उसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर हवेली के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। उसे पता चला कि ये हवेली एक ऐसे ख़ानदान की है जो बरसों से इंग्लैंड में सेटल है और वो लोग वहीं रहते हैं। ख़ानदान के सरबराह का नाम राव अदरीस है और राव अदरीस लंदन में ज़िंदगी गुजार रहा है। यहाँ उसकी काफ़ी जायदाद है और उस जायदाद की देखभाल उसका कानूनी मशीर रियाज शाह करता है। चुनाचा पुलिस रियाज शाह के पास पहुँच गई, जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। बहरहाल पुलिस अफीसर ने रियाज शाह एडवोकेट से मुलाकात की और अपना तारफ़ कराते हुए कहा, रियाज शाह साहब, मैं आपसे दरिया के किनारे उस हवेली के बारे में मालूमात हासिल करने आया हूँ जो आपके क्लाइंट राव अदरीस की है। हाँ, सफ़ेद हवेली, वो सफ़ेद हवेली के नाम से ही मशहूर है। मैं आपसे उसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। खैरियत अफीसर, कोई ख़ास बात हो गई क्या? हाँ रियाज शाह साहब, आप राव अदरीस के कानूनी मशीर हैं। बिल्कुल हूँ। कितनी जायदाद है राव अदरीस की यहाँ? मेरा ख्याल है कि उनकी मकामी जायदाद की मालियत 1 अरब से तजावज़ कर जाती है। सफ़ेद हवेली भी उन्हीं की मलकियत है, लेकिन आपको उनके जायदाद के बारे में तफ्तीश करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्या उन पर कोई केस बनाया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफ़ेद हवेली में एक हादसा हो गया है। खैरियत, कैसा हादसा? वहाँ 3 अफराद कत्ल हो गए हैं। ओहो, कैसे? रियाज शाह ने तशवीश भरी आवाज़ में कहा। बस यही नहीं मालूम हुआ कि वो कैसे कत्ल हुए हैं। एक तो उस हवेली का चौकीदार है। बाबा, चौकीदार बाबा कत्ल हो गया? हाँ। दूसरे एक पिकनिक पार्टी के 2 नौजवान बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, जो बारिश से पनाह लेने के लिए उस हवेली में दाखिल हो गए थे और फिर वहाँ उनकी लाशें दस्तयाब हुईं। हैरानी की बात यह है रियाज शाह साहब कि उन लाशों के जिस्म से गोश्त पार्चों की शक्ल में उतार दिया गया था। काफ़ी गोश्त गायब हुआ और बाकी पार्चों की शक्ल में एक अलमारी में महफूज कर दिया गया, जैसे कोई उन्हें बाकायदा इस्तेमाल करना चाहता हो। रियाज शाह की आंखें शिद्दत हैरत से फटी हुई थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर खामोश हुआ तो उसने कहा, आप, मेरा ख्याल है, किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं। जी नहीं शाह साहब, मैं एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ और आपको कहानियाँ सुनाने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे अपने घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं जो कहानियाँ सुनकर बहुत खुश होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और चूँकि आप इस हवेली के निगरान हैं,
इसलिए आप पर तमाम जिम्मेदारी आयद होती है। कमाल करते हैं आप। इंसानी गोश्त के पार्शों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर आप उसका तल्लक किसी तौर पर मुझसे ज़ाहिर करना चाहते हैं तो आप ऑफिसर हैं, आसानी से ये काम कर लीजिए। हो सकता है कि मैं भी अपना बचाव करने में कामयाब हो जाऊं। शाह साहब, मैं आपसे तफ्तीश करने आया हूं। 3 कत्ल हुए हैं वहां। आप मुझे उस हवेली के बारे में तफसील बताइए। बिला वजह बिगड़ रहे हैं आप। मैं बिगड़ नहीं रहा ऑफिसर। आप लोग तफ्तीश करते हुए हर शख्स के साथ ऐसा रवैया रखते हैं जैसे आप उसे ही मुजरम समझ रहे हों। बहरहाल बात असल में ये है कि मैं एडवोकेट हूँ। बहुत से साहब हसीयत लोगों का कानूनी मशीर और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला। राव अदरीस बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत ही नेक नाम शख्सियत के मालिक। यहाँ उनकी जितनी जायदादें हैं वो उनका पाई पाई टैक्स अदा करते हैं। हालांकि उनके पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं कि अगर वो चाहें तो बहुत कुछ बचा सकते हैं। जिन चीज़ों से उनका कोई आमदनी है वो सिर्फ़ एक मलकियत की हैसियत रखती है, और वो उसका भी टैक्स बाकायदगी से अदा करते हैं, क्योंकि दौलत उनके लिए कोई मसला नहीं है। वैसे मैं आपको एक इत्तला और भी दूं, वो ये है कि राव अदरीस अब वतन वापस आने का फ़ैसला कर चुके हैं और बहुत जल्द अपने अहले ख़ानदान के साथ वतन वापस आ रहे हैं। गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मुझे राव अदरीस साहब की जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। सफ़ेद हवेली के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो कोई असीब ज़दा हवेली की हैसियत रखती है? कतई नहीं, क्योंकि वहाँ जो चौकीदार बाबा मौजूद है या जिसके बारे में आपने इतला दी वो वहाँ मौजूद नहीं है और उसका इंतकाल हो चुका है। उसने कभी आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं की। हवेली बेशक वीरान पड़ी हुई है और मैंने काफ़ी दिन पहले वहाँ का दौरा किया था और उन्हें देखा था। चौकीदार ने बाबा ने पूछा था कि बाहर भी दरख्त हैं, क्या उन्हें कटवा दिया जाए? तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, राय अदरीस साहब जब तक खुद इस सिलसिले में कोई कदम ना उठाएं, हवेली की किसी कील तक को इधर से उधर ना किया जाए। हालांकि चौकीदार ने मुझे बताया था कि मौसम ख़ज़ां में दरख्तों के पत्ते जब झड़ने लगते हैं तो सारा लान तबाह हो जाता है और वो इस सिलसिले में बहुत परेशान हैं। या तो फिर किसी आदमी का बंदोबस्त किया जाए। मैंने उसे कहा कि नहीं चौकीदार बाबा, जो कुछ जैसे रहता है वैसा ही रहने दो। तुम्हारी जितनी जिम्मेदारियां हैं तुम पूरी करो, बाकी काम को छोड़ दो। कभी चौकीदार बाबा ने शिकायत नहीं की इसके बारे में, कभी नहीं। और वैसे भी वो एक बाहिम्मत और दलेर आदमी था, अच्छा खासा तंदुरुस्त और तवाना। मुझे तो उसकी बात के बारे में सुनकर दिली दुख हो रहा है। बड़ा अच्छा आदमी था और आपको शायद इस बात का यकीन ना आए कि वो 30-35 साल से राव अदरीस के ख़ानदान से मुंसलिक है। राव अदरीस ने जब मुल्क से बाहर जाने का फ़ैसला किया तो उसके लिए ख़ास तौर से मुझे कह गए थे कि उसे कहीं किसी जगह लगा दिया जाए और माकूल मुआवजा दिया जाए। बड़ा अच्छा इंसान था वो, और मैं बहुत दुखी हूँ उसके लिए। वैसे उसकी लाश की तदफीन के लिए क्या किया जाए? अभी तक कुछ नहीं किया गया। आप चाहें तो उसकी लाश अपनी तहवील में ले सकते हैं। वैसे उसके अहले ख़ानदान कोई नहीं था बेचारे का। 30 साल से वो उसी सफ़ेद हवेली में रहता था। सफ़ेद हवेली में क्या उन लोगों का क़याम नहीं रहा कभी? साहब, उनकी इतनी जायदाद है शहरों और देहातों में कि सफ़ेद हवेली कभी आबाद ही नहीं हुई। हालांकि अगर आप उसे अंदर से देखें तो दुनिया की हर चीज़ उसमें नज़र आएगी आपको। आपके ख्याल में ये सब क्या हो सकता है? जी, मेरा ख्याल क्या और मैं क्या, चौकीदार बाबा की लाश कहाँ है? मकामी अस्पताल के सर्द खाने में है। पहले मुझे उसकी तदफीन का बंदोबस्त करना है। आप जिस तरह भी चाहें ऑफिसर, आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। सफ़ेद हवेली के बारे में जो तफसीलात मैंने आपको बताई, बस उतनी तफसीलात तक मेरी मालूमात हैं। बाकी आप खुद जो मुनासिब फरमाएंगे। चौकीदार बाबा की लाश दिलवाने में मेरी मदद करें आप। ठीक है, पुलिस अफसर ने तावन करने वाले लहजे में कहा। बड़ा दरवेश सिफ्त ख़ानदान था, ना जाने क्यों इंग्लैंड जैसी जगह पर आकर आबाद हो गया था। असल में राव अदरीस की इब्तदाई सोच ज़रा अलग थी, और फिर बेगम अदरीस ने हमेशा कहर आलूद लंदन के ख्वाब देखे थे और उनके जहन में लंदन बसा हुआ था। इसीलिए राव अदरीस ने लंदन का रुख किया था। एक बेटा और एक बेटी थे। मुख्तसर सा ख़ानदान लंदन में आबाद था। जायदाद मकामी तौर पर ही इतनी थी कि लंदन में कोई कारोबार करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई।
यहीं से इतनी भारी भारी रकमें पहुंच जाती थी और वहां पर शहजादों जैसी ज़िंदगी बसर होती थी। अलबत्ता मशगला सिर्फ ये था कि बेटी और बेटे को ज़बरदस्त तालीम दिलाई जाए और जदीद तौर के तकाज़ों के मुताबिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दोनों को इल्म की इंतहा तक पहुंचा दिया। 4-5 साल में एक आध बार वतन का दौरा भी हो जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज़हन पर एक ख्याल सवार हो गया था, वो ये कि अब वतन वापस चले जाना चाहिए। यहाँ थोड़े बहुत अहले ख़ानदान थे, लेकिन दूर दूर के रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार कोई ना था, ना राव अदरीस का और ना बेगम अदरीस का। शाहाना उवरिस और राव अदरीस लंदन की फ़िज़ाओं में बड़ी महफूज ज़िंदगी गुजारते रहे और वह दुनिया से हटकर नहीं रहते थे, लेकिन उनके अपने मजाज के जितने लोग यहाँ मौजूद थे, सिर्फ उन्हीं से उनके ताल्लुकात थे। यानी दयारे गैर में रहकर अपने वतन की अज़मतों के पासदार, तहज़ीब व अखलाक का दामन हाथ से ना छोड़ने वाले वालदैन की यही कैफियत थी, तो फिर औलादें ऐसी क्यों ना होती। चुनाचा राव एहसान और शमाइला अदरीस अहले लंदन के लिए मशरक़ का आइडियल थे, और अगर कोई मशरक़ की रवायात और सकाफ़त की तस्वीर देखना चाहता था तो उनका घर उसके लिए एक बेहतरीन आर्ट गैलरी था। हसीन मकान मशरक़ की साजो सामान से आरास्ता किया गया था और अपनी जगह एक नवारद खाने की हैसियत रखता था। राव अदरीस और बेगम अदरीस का ख्याल था कि बच्चे जवान हो चुके हैं, लंदन से भला कितना फासला है, अब उनकी ज़िंदगी के बकिया लम्हात वतन में गुजारने चाहिए ताकि नस्लें ना बिगड़ सकें। जो कुछ संभाल सकते थे वो संभाल लिया था, बाकी और कुछ संभालने के लिए उनके पास ना तो हिम्मत थी और ना गुंजाइश। चुनाचा अब एहतियात बरतना ज़रूरी था, बेगम अदरीस ने कहा। बेशक अपना वतन अपना ही होता है और वहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ। 4-6 साल में एक आध बार चले जाने से वतन की सकाफ़त का कुछ पता नहीं चलता। असल बात तो वहाँ रहकर वहाँ के हालात देखने की होती है। फिर ज़ाहिर है कि बच्चों की शादी कर देंगे। अब ज़रूरी तो नहीं है कि लंदन में आकर बसने वाले हमारी ही तरह हमाकतों का शिकार हों और हमारे ही अंदाज़े फ़िक्र रखते हों। जब दूसरों को अपने आप में शामिल कर लेंगे तो फिर उन्हें अपने मिजाज के मुताबिक नहीं चला सकेंगे ना। बेहतर ये है कि वतन वापस जाकर ही बच्चों के बारे में सोचें। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप, मैं रियाज शाह से बात किए लेता हूँ, रियाज शाह इंतज़ाम कर देंगे। बच्चे भी वतन वापसी के ख्याल से खुश थे। शमाइला और एहसान ने आपस में मशवरा किया और फिर बाप से फरमाइश की, डैडी वतन वापसी का ख्याल बड़ा ही दिलकश है, हम सब अब वहाँ जाकर रहना चाहते हैं। हमने वतन की जितनी भी झलकियाँ देखी हैं उनका अपना एक मकाम है और हम जानते हैं कि वतन में वक़्त गुजारना कितना दिलकश होगा हमारे लिए, और फिर हम खुद जाकर जायदाद वगैरह की देखभाल करेंगे। आप हमारी ख्वाहिश पर एक काम ज़रूर कर दीजिए। हाँ बेटे बोलो। वो दरिया किनारे वाली हवेली अपनी रिहाइश के लिए दुरुस्त करा लीजिए। पिछली बार मैं ख़ास तौर से उस हवेली को देखने के लिए गया था। आप यकीन करें वो तो ख्वाबों की जन्नत है। सामने तेज़ो तंद रवानी वाला दरिया, कुर्बो जवार में जंगल, बाकी आबादी भी यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं है। शमाइला और मैं ख़ास तौर से वहाँ गए थे और शमाइला ने उस वक़्त भी यही बात कही थी कि अगर हमें कभी वतन वापस आकर रहना पड़ा तो इस आइडियल जगह को नहीं छोड़ा जाएगा, हम लोग यहीं क़याम करेंगे। डैडी आबादी भी वहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं है और फिर हमारे पास ज़राए आमदोरफ़्त तो बहुत सारे होंगे। वो जो एक मुहावरा है ना कि जंगल में मंगल। डैडी आपको कोई एतराज़ नहीं है वहाँ रहने में? नहीं बेटा, कहर में डूबे हुए लंदन और यहाँ की हंगामा परवर ज़िंदगी ने दिमाग को बहुत मुतासर किया है। अब दरिया की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं और हवेली के हाथे में झूलते हुए दरख्त अगर हमें पुकार रहे हैं तो हम उनसे किनारा कशी क्यों इख्तियार करें? मैं तुमसे मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। रियाज शाह को मैं इसके बारे में इतला दिए देता हूँ कि उस हवेली को दुरुस्त करा दे। थैंक यू डैडी, थैंक यू। अब तो हम दिन रात वहाँ जाने के ख्वाब देखेंगे। बहरहाल ये सारी बातें हुई थी और वतन वापसी की तैयारियां होने लगी थीं। शनासा बड़े अफसोस का इज़हार कर रहे थे कि मशरक़ की सकाफ़त लंदन से जा रही है और कोई दूसरा हवाला ऐसा नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान का असल रूप अहले लंदन को दिखाया जा सके। फिर एक अफसोसनाक इतला जो रियाज शाह की तरफ से मिली थी वो ये
کہ حویلی کا چوکیدار جو کہ قدیم ملازم تھا قتل کر دیا گیا اور پولیس اس کے سلسلے میں تفتیش کر رہی ہے۔ اوہو، یہ کیسے ہوا؟ یہ تو بڑے دکھ بڑی بات ہے۔ چوکیدار بابا تو ہمارا بہت پرانا ساتھی تھا۔ ریاض شاہ کو ہدایت کی گئی کہ حویلی میں بہت سے مزدور لگا کر اس کی ایک ایک چیز کو درست کر دیا جائے۔ ہم بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ باقی سارے کام وہاں واپس آنے کے بعد ہوں گے۔ راؤ ادریس اور دوسرے لوگ مکمل طور پر تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ادھر سفید حویلی میں اوگلوس اور اس کا خاندان نئی دنیا میں زندگی گزارنے کے متارج طے کر رہا تھا۔ اوگلوس اور خود اوگاستی شوگن اور لاروا کے ساتھ شہری آبادی میں داخل ہوا تھا۔ عظیم و شان عمارتیں، سڑکوں پر دوڑتی ہوئی کاریں، جدید دنیا کے تمام جدتوں نے ان لوگوں کو پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک طرف شدت حیرت کا شکار تھے وہ، تو دوسری طرف خاص طور سے نوجوان لڑکے بے پناہ خوش تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب یہ دنیا ان کی اپنی دنیا ہے، وہ یہاں اپنی پسند کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ تصور ان کے لیے بے حد حسین تھا۔ اوگلوس انہیں بتا رہا تھا کہ مقامی لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور ان کا طرز رہائش کیا ہے۔ اس سلسلے میں اوگلوس نے اپنے تمام تر جادو اور ذہانتوں سے کام لیا تھا۔ وہ انسانوں کی شکل میں بستی اور آبادیوں میں داخل ہوئے تھے اور انسانوں کی طرح انہوں نے ہر عمل کیا تھا، لیکن جب کبھی انہیں کسی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوتی اور یہ اندازہ ہو جاتا کہ یہاں آسانی سے داخلہ ممکن نہیں ہے، تو وہ سانپ بن جایا کرتے اور کسی نہ کسی کونے کھدرے سے اندر داخل ہو جاتے، اور اس طرح سے عمل کرتے ہوئے کئی دلچسپ واقعات بھی پیش آ گئے تھے۔ مثلاً لاروا ایک ایسے دفتر میں داخل ہوا جہاں بہت سے مرد اور عورتیں کام کیا کرتے تھے۔ لاروا کو نہیں معلوم تھا کہ اندر شیشے کے گھر میں کیا ہے جہاں لوگ خوبصورت لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک ایسے سوراخ سے اندر داخل ہوا تھا جو شاید ایئر کنڈیشن کے لیے تھا، اور وہاں سے ایئر کنڈیشن نکلا ہوا تھا۔ جیسے ہی لاروا اس سوراخ سے نیچے اترا، کسی کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ لاروا ساکت نگاہوں سے اس حسین جگہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دیکھنے والے کی حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکلی، سانپ! اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ چونک پڑے، اور پھر انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے لاروا کو دیکھا، اور اس کے بعد جو بھگدڑ مچی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ اچھل اچھل کر میدوں پر چڑھ گئے تھے، لڑکیاں چیخ رہی تھی، چیزیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ دھما چوکڑی مچی کہ لاروا خود پریشان ہو گیا۔ البتہ ان میں سے ایک بھی سورما ایسا نہیں تھا جس نے لاروا کو مارنے کی کوشش کی ہو، اور وہ اس سے اتنے دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ بس بھاگتے پھر رہے تھے۔ البتہ لاروا کو اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں اس بھاگ دوڑ میں وہ ان کے قدموں تلے آ کر نہ کچلا جائے، چنانچہ اس نے فوراً ہی واپسی کی تیاریاں کی اور مڑ کر اسی سوراخ سے باہر نکل گیا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی۔ یہ نئی دنیا کے لوگ تو بڑے ہی بزدل ہیں، بھلا اس طرح انہیں خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن بہرحال لاروا کو ایک تجربہ ہوا تھا۔ اس طرح کے لاتعداد تجربات اوگاس، شوگن اور خود اوگلوس کو بھی ہوئے۔ شوگن اور اوگلوس وغیرہ نے اپنی بہنوں سے بھی کہا، تم لوگوں کو ایک جگہ گھسے رہنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، باہر کیوں نہیں نکلتی؟ سیرا نے کہا کہ ہم تو باہر نکلنا چاہتے ہیں، اگر مقدس باپ ہمیں اجازت دیں۔ میں نے بھلا کب منع کیا ہے؟ میں نے تو خود تم لوگوں سے کہا ہے کہ تم لوگ باہر نکلو، اس دنیا میں اپنے لیے الگ الگ جگہ تلاش کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری تقدیر کا مالک بن کر تم پر مسلط رہوں۔ البتہ میں نے جو ایک بات کہی ہے کہ اماؤس کی رات جب چاند چھپا ہوا ہو، تم سب ناگ منڈل میں پہنچ جاؤ تاکہ ہم آپس میں ملاقات کر لیا کریں۔ یہ ایک بہترین عمل رہے گا۔ باقی اگر تم اپنے لیے اپنی زندگی تلاش کر لیتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ تمہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح تمہارے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا جادو تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اگر تم کسی مصیبت میں پھنسے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ لڑکیاں بھی خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے، لیکن میری ایک اور رائے ہے۔ یہ الفاظ ایلا نے کہے تھے، جو اوگلوس کی بیٹیوں میں سب سے سمجھدار لڑکی تھی۔ مقدس باپ، میں چاہتی ہوں کہ میں یہیں اس خوبصورت جھونپڑے میں جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں، زمین کی گہرائیوں میں ایک ایسی جگہ منتخب کر لوں جہاں ہم لوگ جب تک ضرورت ہو قیام کیا کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ جب تک ہم دنیا سے اچھی طرح روشناس نہیں ہو جاتے،
हम घूम फिर कर यहीं वापस आ जाया करें, या अगर कहीं निकल गए तो दूसरी बात है। अमावस की रात हम लोग नागमंडल में ही तो मिला करेंगे। हाँ, ये भी तुम ठीक ही कहती हो। और मेरी निगाहों में एक ऐसी जगह मौजूद है, आओ मैं तुम सबको दिखाऊं। वो गालबन कोई ऐसा ज़ैर ज़मीन टैंक था जो कभी किसी ज़माने में पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन अब वो सूखा पड़ा हुआ था और पानी के आने जाने के रास्ते भी बंद हो गए थे। अलबत्ता उसकी छत ऊपर से मिटी हुई थी, अच्छी खासी वसी जगह थी, बड़ी साफ़ सुथरी, यानी इसके काबिल कि वहाँ आराम से वक्त गुजारा जाए। ओगलूस ने उन सब को ये जगह बताई और आने जाने के रास्ते भी दिखाए तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। ये तो नागमंडल से अच्छी जगह है, अगर हम यहीं मिल लिया करें तो क्या हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं।